Good evening, sir. Good evening, Apurva. Good evening, sir. Hello, Abhishek. Good evening, sir. Hey, Zeba. I read your opinions, guys. And first of all, I would like corrections related to the language. Okay. Apurva is here, and I am reading Apurva's text. In my opinion, the word is more morally correct. Good evening, sir. Hello, Rishikesh. The word is more morally correct today than in the past. Okay. Earlier, people did not value a girl's education. Many Good evening. girls, good evening, had to marry very young without asking them what they wanted. लंबा नहीं करना चाहिए पूर्वा बेटा, सेंटेंस लंबा नहीं लिखना चाहिए. ओके. वो Okay. हिंदी में लंबे सेंटेंस हो सकते हैं, इंग्लिश में लंबे सेंटेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश में अभी जब 2-3 साल सीख लेंगे ना इंग्लिश, तब लंबे सेंटेंस लिखेंगे बेटा. Okay, sir. अभी हमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिखने हैं, एंड बट ये वाले वर्ड से जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Good evening, sir. Good evening everybody. So, Good evening, sir. hello Sulekha ji. You're here, Sulekha. Ruksar, welcome. Sir. Yes, Good sir. evening, sir. Good evening, Ruksar. Your books are ready, Ruksar. Okay. I forgot to give them to your nephew. He is not coming, sir. He is not going, Shams. Today he was not in the class. Yesterday he was. Okay, sir. Yeah. That's okay, Moni. No problems. Okay. So many girls had to marry very young. Full stop, beta. Okay. Apurva, full Okay. stop. Next sentence, beta. Their parents didn't ask them. After young, if we give a full stop, beta, then we will say their parents didn't ask them what they wanted. Sir. Hello, Renu. Yeah. Okay. Their parents didn't ask them what they wanted. Okay, sir. They were not given equal chance. Hello, sir. Hello, Adi, beta. They Sir, were I will go a bit early. early, yes, sir. Because in 3 days I have to go to tuition there. All right, beta. Sir, in tuition there is a match. Okay. Kabaddi or cricket match? No, carom match or indoor Yeah. games. Indoor cricket. games. Okay. Indoor games. Lovely. It's Oh. fun. Are you participating, Adib? Yes, sir. Lovely. Best of luck. I hope you win some matches. Thanks, sir. Thanks. Let's see. So they were not given equal chances to learn sometimes. They did not even get basic education sometimes. Women were treated unfairly and thought to be less than men. Yes, beta. So very beautifully written. If a woman made a mistake, she could be punished because she didn't know her rights. She had to stay quiet and accept it. Today, things have changed a lot. Women speak up for their rights, take part equally in sports, research, teaching, medicine, law, and many more sectors.
In the past, if someone got sick, people would say it was because of a curse or magic. Now, people go to doctors when they feel sick, which shows how we now believe in science instead of superstitions. Beautiful, beautiful, Apurva. Anshu writes. Anshu, are you here, Anshu? Anshu is not here. Zeba writes. I'm reading what Zeba writes. In my opinion, something was a better path. Something was a better path. No, no, no. Zeba, in my opinion, some things separate लिखना है. Some things कुछ चीजें, ठीक है बेटा? Some things Yes. separate. Some things were better in the past, and some things are better now. Yes, sir. कुछ चीजें, right? कुछ चीजें. Some things were better in the past, and some things are better now. Does it make sense, Seba? Yes, sir. Education is better now than in the past. Boys and girls are considered equal. लड़के लड़कियों को बराबर समझा जाता है. Boys and girls are considered equal. But in the past, it was not like this. Absolutely, very well done. Now everyone has their freedom. Girls didn't have freedom in the past. बहुत अच्छा लिख रहे हो ज़ेबा बेटा. थोड़ा improvement, okay? Girls didn't get the opportunity to do anything. Girls didn't get the opportunity to do anything. Now girls are leading in everything. Beautiful. But some things were better in the past than now. For example, relationship. जैसे कि लिख सकते हैं, for example, such as relationship. Living together before marriage. It is not good. I don't like it. This is not in our culture. Yeah, living relationship. Fighting over religions. It didn't happen in the past. It didn't happen in the past. It didn't happen. Unfortunately, this is not true. People fought more, over religion in the past than they Yes. Today, people don't fight so much. But in the past, there were more fights. And we will talk about it a bit later. First of all, it didn't language-wise, beta. It didn't happen in the Yes. past. It didn't happen in the past. Now, there is showing off everything more than the past. ये वाला लाइन का मतलब नहीं समझा बेटा. There is showing off everything more than. मतलब कि आज मतलब अब किसी भी चीज में दिखावा ज्यादा हो गया है. Yes, exactly. Now people believe in showing off, right, beta? Now these days, today, people believe in showing off, right? Yeah, and they do it more than in the past. Yes, true. Okay. इस बात पे भी हम थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं. I also disagree with you on this. ठीक है बेटा. पास्ट का दिखावा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, द ताजमहल. ताजमहल दिखावा का चीज है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Showing love towards her wife. और वो दिखावा कौन कर रहा था? राजा, right? Yes. और Yes. वो राजा की खुद की पैसे, आज के डेट में राजा के खुद के पैसे नहीं होते बेटा. उसने बाकी लोगों के पैसे से अपना दिखावा किया. मेरी वाइफ का मकबरा बनाएंगे इतना बड़ा, राइट? तो इट वाज दिखावा बेटा, इट वाज दिखावा. ओके, तो दिखावा. Can we repeat the right sentence, sir? कम अगेन बेटा. Can you repeat right sentence, sir? I will correct you. I will correct you. In the past, people believed in showing off. Okay, people believed in showing off. They don't do so much now. वो ऐसा बहुत ज्यादा अब नहीं करते. They don't do so much showing off.
सॉरी उल्टा बोल रहे हो आप बोल रहे हो टुडे पीपल बिलीव इन शोइंग ऑफ, इन द पास्ट दे डिड नॉट डू दैट। ठीक है, yes, yes, girls dressing sense was better in the past than now। that's a very important point। girls clothes है ना बेटा, गर्ल्स yes. क्लोथ्स, गर्ल्स क्लोथ्स। इस बात पे भी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। गर्ल्स क्लोथ्स, लोग बात करते हैं क्लोथ्स की बहुत ज्यादा, बट आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू। वी कैन से दैट shamelessness is increasing, shameless is not increasing beta, shamelessness shameless is an adjective beta, shameless is an adjective। that guy is shameless, that girl is shameless, okay? तो You are मैंने यहाँ वही लिखा, वहाँ छूट गया सर। shamelessness, okay beta, shamelessness Yes, is increasing and the world has become more modern, the world has become, दुनिया बन गई है ना बेटा, बनती है या बन गई है? Has become. has has become, the world has become more modern, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। Anybody else has written? Say no। I think the world is a more morally correct place today। If we talk about past time, so in the past, Sati Pratha was totally wrong culture in India. It was totally against age of morality। But if we talk about past, today's time, so we do so many wrong things against morality. Okay, today, because morality is just not like part of morality is not like a two parts of coin। Renu, what do you want to say? Yes, sir, I want to say that because we don't say na morality is a right or wrong. Sometimes morality in present time it's different in some person opinion, and morality totally against with some person opinion. Morality is a subjective thing or objective thing, that becomes a issue ना, कि किसी का morality कुछ है, किसी का morality कुछ है, Yes, right? sir. Yes, sir. Okay. Morality is a subjective matter, morality is a Yes, sir. subjective matter। Subjective matter. Yes, sir. Yeah। um okay, good। अरे वो काफी दो लाइन से काम नहीं चलेगा, मेहनत नहीं करोगे हासिल नहीं होगा, अब आना होगा मेहनत कर। Sir, I take camera for few minutes, sir. Yes beta, in my opinion the world was more morally correct in the past, but some things are better in the present। काशिफ, ऐसे नहीं चलता। देखा तुम लोगों ने, तुमने कि लड़कियों ने कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करा है। तो मेन बात क्या है काशिफ, मैं समझता हूँ तुम लिखने से डर रहे होंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा लिखने का, राइट? सही बोल रहा हूँ ना काशिफ? नो सर, आई एम बिजी। हाँ ठीक। देखो निशु खान बिजी नहीं थी, उसने कितना अच्छे से लिखा है। some things बेटा, some things separate some things were better in the past and some things are better now। ठीक है? Hello, sir. Give me a second। Hello? Yes, sir। Good evening। I'm in the class। After your class is over at 8:30, because after this class I start. Yes, what? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay। Mm-hmm. You recorded it on your on your device, on your laptop, It is available। I'll tell you। इसको ये करना पड़ता है, और convert करना पड़ता है। Okay, there will be this thing। I will tell you about it। Okay, but now I can't help you right now because I'm in the class। Okay? But I'll tell you how to do things maybe in your class at 7। Okay? Yeah।
ओके बेटा, कुछ चीजें कैसे बोलते हैं बेटा? कुछ चीजें, सम थिंग्स। दो चीजें बेटा, कुछ, कोई चीज और कुछ चीजें, दोनों में अलग है बेटा। कुछ चीजें, मेरी कुछ चीजें तुम्हारे पास हैं, राइट। मैंने कुछ चीजें खरीदी हैं बाजार से, आई बॉट सम थिंग्स, ठीक है। और कुछ खरीदा है, कुछ बता नहीं रहे क्या, कुछ। तो मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास है कुछ, आई हैव समथिंग। तो समथिंग और समथिंग्स अलग है, दोनों समझ में आता है आप लोगों को दोस्तों? समथिंग और समथिंग्स, आप समझते हो दोनों में फर्क? मेरे आंख में कुछ पड़ गया है, तो देर इज समथिंग इन माई आई, I've got something in my eye. I've got something in my eye. Something, एक वर्ड, something, okay? मेरे आंख में कुछ पड़ गया है। दोस्तों, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यू आर हाइडिंग समथिंग, यू आर हाइडिंग समथिंग। कुछ छुपा रहे हो, समथिंग, एक वर्ड बेटा, एक वर्ड, समथिंग, ओके? अब बोलो, कुछ चीजें, कुछ चीजें मैं लेके आ जाऊंगा, कुछ चीजें तुम लेके आ जाना। I will bring some things and you will bring some other things. Okay? So, some things, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, some अलग, things अलग। Okay, guys? Say yes if you understand. Some things, कुछ चीजें। Some things were better. Some things were better. कुछ चीजें बेहतर थी। Some things were better in the past. And some things are better now. आजकल, nowadays, nowadays, इसमें ए लगा देना बेटा। आजकल की इंग्लिश nowadays, nowadays। अच्छा, today's generation, today's generation, आज की जनरेशन को कैसे बोलते बेटा इंग्लिश में? Today's Today, generation. today's generation। Today generation. Okay, live longer, today's generation lives longer due to better technology, innovations, economic development, and the global connection. Okay, everyone has their freedom, everyone has their freedom, everyone has their freedom, सबके पास अपनी आजादी है। Girls also have freedom, girls also have freedom, छोटे छोटे लाइंस लिखना चाहिए दोस्तों। Girls also have freedom। Now, just like relationship, living together, exactly what Zeba wrote. Okay, सर हम अपने सर हम कुछ आई थिंक चलो कोई बात नहीं, आई एम नॉट रेड देयर ठीक है। गणपत writes, I realize that some things, बेटा गणपत, are you here? गणपत is not here, तो ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं, वो है नहीं। चलिए पढ़ देते हैं फिर भी। I realize that some things were better in the past, some things were better in the past, and some things are better in the present। ऐसे ही बोलना चाहिए ना मेरे दोस्तों? Some Yes. things are better in the past and some things are better in the present। In the past, we didn't have requirement of things, for example, electricity, vehicles, education। नहीं, रिक्वायरमेंट तो हमेशा रही है, जरूरत तो हमेशा से थी, लोग बस था ही नहीं। जैसे आज आप यहां से उड़ के चांद पे जा सकते हैं अपने आप? नहीं ना, मतलब खुद से नहीं कर सकते ना, कुछ ही लोग करेंगे ना। चाहते तो हम भी हैं। तो एक समय आ सकता है जब ऐसा होगा, आराम से लोग यहाँ से जा रहे होंगे कहाँ, मून पे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं ना, अमेरिका चले जाते हैं हॉलीडे मनाने, राइट। तो एक समय हो सकता है ना कि हम लोग चांद पे जाएंगे हॉलीडे मनाने, हो सकता है ना ऐसा, कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा? हो सकता है। हो सकता है। तो वो मे बी लेकिन अभी हो नहीं रहा है, अभी हमारे पास क्षमता नहीं है। तो लोग तो चाहते ही होंगे गाड़ी जल्दी से कहीं पहुंचना, लेकिन उनके पास खाली घोड़ा गाड़ी था, राइट, उनके पास नहीं था। तो जरूरत थी बेटा, जरूरत तो थी, लेकिन उनके पास नहीं था ये सब। और याद रखना, जब हम लिखने के लिए कहें ना, तो हम चाहेंगे कि आप जितनी सिंपल भाषा लिख सकते हो उतनी सिंपल भाषा लिखिए, ठीक है?
Aman has, sorry, Aman, I'm saying, Abhishek has written very straightforward. बेटा अभिषेक, आपके लिखने का तरीका, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बड़े हो ना, तो एक अडल्ट को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? एक अडल्ट को बात को बना के लिखना चाहिए, सुंदर करके। एक अडल्ट संभाल के लिख सकता है। तो योर आइडियाज आर गुड, बट अगेन यू आर एक्चुअली वेरी प्रिसाइज. My thought today, life is more morally correct than in the past. Let's give you some examples. नहीं, let me give you some examples. Let's में you नहीं बोल सकते बेटा, ओके? you शामिल हो जाता है लेट्स में। जैसे बोलते हैं लेट्स गो टू द सिनेमा, तो you भी तो चलेगा साथ में, ठीक है? Let me give you some examples. First, sati pratha in Hindu religion. Second, child marriage. Third, triple talaq in the Muslim religion, etc. Fourth, people were not given education. People did not give education to their girl child. People did not give education. Abhishek, people did not give education to their girl child in the past. Okay. अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक, कालिदास की शादी किससे हुई थी? कि कोई बता सकता है कालिदास की शादी किससे हुई थी? शकुंतला सर कौन थी? कालिदास की शादी किससे हुई थी? हुई थी। अब कोई बता सकता है यहाँ पर? नहीं पता? कालिदास कौन थे, आपको पता है कालिदास? यस सर। ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों कि आज के दौर में हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चेंजेस नहीं है, ऐसी बातें नहीं है कि हमें उन चीजों के बारे में पता चले जो हमारे बारे में हमें प्राउड फील कराए। कालिदास दुनिया के एक महान कवि, सबसे महान नहीं बोलूंगा, महान कवियों में से एक थे, जिन्होंने गजब गजब ये महान काव्य लिखे, जिसमें कुमार संभव और कुछ नाम बताइए दोस्तों। अभिषेक? मेघदूतम, ये सब कुछ महान काव्य हैं। इनकी क्वालिटी जो है पोएट्री की, इनकी क्वालिटी दुनिया में जो सबसे अच्छे काव्य माने जाते हैं ना, उनकी लेवल की है। कालिदास आज से कोई 1500 से 1500 साल पहले थे भारत में। एक इंसान थे, कोई कैरेक्टर, कोई हिस्ट्री की बात है दोस्तों, कोई कहानी नहीं है, रामकृष्ण जैसे कोई बात नहीं है, ठीक है? जिसके बारे में अभी हम पता करें या बोल दे, किसी को बोल दे कि क्या कहते हैं, कहानी है, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ लोग राम और कृष्ण को कहानी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसके एविडेंस नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री है, 1500 ईयर्स अगो। कौन? कालिदास। तो कालिदास की शादी जिनसे हुई थी वो एक महिला थी, और उनकी शादी इस वजह से नहीं हो पा रही थी कि उन्होंने कहा था अपने से ज्यादा दिमाग वाले इंसान से शादी करूंगी मैं। तो वो शास्त्रार्थ करती थी, लोगों से ये करती थी, जैसे आज हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, वो डिस्कशन करती थी, और जो भी महान इंसान आता था वो हार जाता था उनसे, उनके पास इतना ज्ञान था। तो ये कहना कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ये हो सकता है पिछले कुछ सालों के लिए सही हो, लेकिन हिस्ट्री के लिए नहीं बोल सकते आप सही। भारत की हिस्ट्री के लिए आप नहीं बोल सकते ये बात सही है, क्योंकि अगर वो इतनी ज्ञानवान थी तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता होगा? But sir, it's not possible for every caste in past. अभी मैं आने वाला हूं, मैं एक ही मुद्दे को, मैं सारे मुद्दे टच कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये बातचीत आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में? सर हिंदी और इंग्लिश बोथ आप सर, लोग थोड़ा बताइए, जो बातचीत आप डिफिकल्ट होता है। चाहते हैं या इंग्लिश में? यू वांट दिस In English. कॉन्वर्सेशन English, sir. English. in English? Okay, so pay attention and listen and understand. That lady could not find a husband because she was so knowledgeable. Okay, so women were educated in the past. Women also had the same kind of education in the past, but again, in last some 100 years, like maybe we can say 400 years, 600 years, 1000 years, 1200 years, things have changed. India's nature, India's
the way India was in the past, that changed because of the invasion of other cultures. When the English came, they brought their beliefs with them and they brought changes to India. So when you talk about women's education, it is wrong to say that in India, women were not educated. In India, women had education in the past. This thing was not there, that boys will get education and girls will stay at home, was not the case. Okay, tell me one thing. Have you heard about Ashoka? Yes, sir. Yes, Samrat. sir. Samrat Ashoka. Okay, tell me. Yes, sir. I read. So Ashoka fought a very big battle against Kalinga. Have you read history? Yes, sir. Yes, sir. That was 2,300 years ago. 2,300 years ago. Now, who was the opponent against Ashoka? A lady. Because Kalinga, when the kings and the princes were killed, then the princess, a girl, fought against, Ashoka. The princess of Kalinga, she fought the battle, she fought the war against Ashoka. Now, here comes this thing. In last, let's say some 100 years ago, in period, there has been a big divide between boys and girls. It is true. It is absolutely true that there was a big divide between boys and girls, where girls were considered, not so equal to boys. So first, this point I wanted to refute, that there was, if you say that in India, girls were not given education, you will find all sorts of examples where you will learn that girls were given education too. Yes. Whatever education was available, of course, they did not have education like today, but whatever education was available was given to girls. Now, this point is done. My personal opinion is the world is a better place today for many reasons. Morally, when we talk about morality, what is morality? Morality is to consider everybody equal. Do you agree? Yes. Is it morally right to think that I am XYZ, I was born in XYZ family, and that's why I'm better than other people? Is it morally correct to think this way? Is it good morality? High morality, guys? No, sir. All are equal. All are equal because of birth. Their actions can make them More superior and superior. inferior. Superior and inferior. Yes, sir. Their knowledge, their behavior can make them superior and inferior. Just because of birth, nobody is superior or inferior. This is the value today. This is the morality today. If you are in the class, can you say that XYZ is not as good as me because my identity is this and his identity is that? Can you say this today? No, sir. No, sir. Never. If you say something like this today, that somebody's identity is XYZ, my identity is ABC, so I am superior, then people will boycott you. Yes or no? Yes. People will cancel you. People will dismiss you. People will cancel you. They will not. But sir, some place it's happened, na sir. Some workplace. I find this. I will tell you. Some people who have similar mentality, okay, that we are superior by birth, by race, by religion, by caste, when they come together, then because they are big in number, they try to behave that way. That's what Renu is talking about. In some places, people still behave that way. Sometimes some people get together and their opinion is, because we are from, this is our identity, we are superior,
and other people are inferior. Some people still behave this way, but publicly they hide their real intentions. Why? They hide their real opinions publicly. Why do they hide their opinions publicly? Because they know today morality will not accept that somebody says, I'm superior to you because of my identity. I have so many people here in this room from different caste, different religion, different identity, different sex, men, women. Can anybody speak out loud that I am XYZ, that's why I'm better? Do you have the courage to say this? Do you have the courage to say this publicly? Anybody? Maybe in your mind you think this way. It is possible. Suppose somebody here belongs to a particular caste and they can say, I'm superior, I'm better. Or maybe somebody belongs to a certain religion and can think in their mind, I'm better because I'm from this religion. Possible. But can they say it in public? Like here, can they say this? No, they will not say this. They will not have the courage. You know why? Because they know it is wrong to say this publicly. So in the past, did people have this much fear? Did they have this kind of sense of equality, equity? No, sir. So those people who are saying that the world was a better place in the past do not understand what morality is. Imagine 100 people who share their ideology, 100 people who share the same identity, okay? They start to behave that we are superior, we are better, and there is no opposition, and they don't feel any guilt, they don't feel any shame in saying that, and they can say it publicly. Then that was bad times, that they did not really feel ashamed saying that we are better just because of our identity. So the world was driven by people's identity in the past. Would you agree or not? People's individual identity did not matter so much. Their group identity mattered more in the past. Do you agree? Yes. People's group Yes. identity. Do you guys have multiple identities? One identity, pehchan. Identity means pehchan. One of your identities is your individual identity. And another identity is a group identity. Today, which identity do you bring in public? Personal identity or group identity? When you go to public, when you are in public, which identity do you normally show? Your personal identity or your group identity? Personal identity. Sir. When you bring your personal identity in public, then people will treat you for the kind of person you are. If you're a good person, people will like you. If you're not a good person, people will not like you. But in the past, they did not care about whether you were good or not. They did not care about it. I'm talking about just, okay. B.R. Ambedkar belonged to a particular caste, and he writes in his book that he could not find a house to live on rent because of his caste. What does it show? That in the past, people did not care about individual identity. He was a learned man. He ended up drafting our constitution. That man, B.R. Ambedkar, drafted our constitution. It means he was a very big scholar, right? But that man could not find a house to live in. He wrote in his book, he could not find a house to live in because of his identity. Tell me, the world was a morally better place in the past? No, sir. When you see this, No. I'm giving you arguments. Those people who still believe that the past was a better time, morally, I'm asking those people, please bring your ideas and tell me, why should I believe that the past was morally more correct? Bring me arguments to believe that the past was a better time morally. I will go back. You have heard of Aurangzeb, the ruler?
Yes, sir. Aurangzeb asked Hindus to pay extra tax, which was called jizya tax. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Only Hindus had to pay jizya tax. Non-Muslims. Okay? You're Or right. non- Non-Muslims had to pay jizya tax. Okay. Yes, yes. My question is, today, if Modi government says that Hindus will have to pay extra tax or Muslims will have to pay extra tax, then do you think society will accept that? Will it be accepted No, today? sir. No, sir. No, sir. No one except. I'm asking you, if the Modi government says that this particular group of people will pay extra tax, will people accept that normally? No, sir. It's not No, sir. acceptable. So equality is today or equality was in the past? Equality is today. We see better equality, sense of equality among people today. People think that जो भी देना सबको बराबर देना है, क्यों ज्यादा देना है? But there was a time when Hindus paid jizya tax. So how could you say that the past was a better time morally? You are targeting a group of people because of their religion, saying that pay extra tax. Why? So clearly, the world was not a better place in the past because they did not consider everybody equal. Who is our ruler today? If you consider Pradhan Mantri as a ruler, he's not a ruler, by the way. He's not a ruler. We have elected him, okay? He's not a ruler. Now tell me, you don't have a ruler. You select who will make policies for you today. In the past, you could not select. The son of the king was going to be a ruler. Whether he was a good person, he was a bad person. You know that Salim was a drunkard. Akbar's son Yes. Salim was a big drunkard. He was very alcoholic. Do you know that? Yes. Yes, sir. Now tell me, Salim was a big drunkard. And from the times of Salim, this English government, people, they came to India and they started exploiting India because they brought high quality wine for Salim. Salim drank that wine and said, wow, superb. हाँ भैया बोलो क्या करना है? Business करना है? करो करो करो. So this is how they decided. Who paid the price? People paid the price? Can Yes. you say the past was a morally better time than present? Those people who still believe that the past was better, bring your arguments, please. I'm here to discuss that. How? On what basis are you saying that the past was a better time? Now, the most important issue. Some women here said that the way women dress today, okay, that was better in the past. And the way women dress today is not as good. Okay. So that's one aspect where past was better. Yes. Really? Okay. Let's talk about it. Okay. Those people normally who talk... The people who normally talk about clothes of girls are usually traditional people. That's how we decide. Some people are modern. They say, क्या फर्क पड़ता है लड़कियां जीन्स पहन रही, क्या फर्क पड़ता है, right? उनके shoulders दिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, right? But we don't want girls to show their private parts, okay? Because it is civilized society. We are not animals, right, guys? We are not animals. We don't want boys or girls to show their private parts when they are wearing clothes. When they're dressed up, their private parts should be covered. But if their shoulders are showing, if their legs are showing, by the way, then we say it is wrong, right? We say it is wrong. It is morally wrong. It is shamelessness, right, guys? Who are the first people to criticize? Who are the first people to criticize? Religious people. Do you agree? Yes, yes. Do you agree that religious people are the first people to feel, oh no, this is not good. Girls should cover their body. Do you agree? Now, here's some important piece of information. All the religious people, Hindus, Muslims, both, okay?
Hindus and Muslims both. If you go in history and read, then you will learn. They made rules. They made rules. उन्होंने rules बनाए थे. और वो rules क्या थे पता है बेटा? That कुछ लड़कियां, कुछ औरतें अपने breast cover नहीं कर सकते. Yes, sir, I heard about this. This. Yes, I read it. It's true, Yes, sir. sir. Okay? जो गुलाम औरतें होती थी, उनको हक नहीं था कवर करने Yes, का. yes. और इंडिया में जो अछूत औरतें होती थी, उनको हक नहीं था ब्रेस्ट पे कपड़े पहनने का. Now, I want to ask you, अगर ये ऐसा हुआ है पास्ट में, तो tell me, the past was a more morally correct time or today is more morally correct time when you were forcing girls not to cover their breasts, and today if they choose, some girls, okay, how many girls here are sitting without covering their body? तो आप देख रहे हो ना? तो I know in some cultures they don't really make much of a fuss of their body. उनको बॉडी से झिझक नहीं होती है. ठीक है, उनका सोचने का तरीका है कि बॉडी अगर गंदी होती, नंगी बॉडी गंदी होती, तो हमें भगवान ने नंगा पैदा नहीं किया होता. ठीक है, उनके सोचने का नजरिया है. तो ऑब्वियसली वो इस बात को इश्यू नहीं बनाते बहुत ज्यादा. वो कहते हैं आपके एक्शंस, आपके थॉट्स मायने रखते हैं, नॉट द वे यू आर ड्रेसिंग. मान लो आप अपने शरीर को पूरा ढके हुए हो, लेकिन आपके जज्बात बहुत अलग अजब है, गलत है, अजीब है अंदर, तो क्या मायने रखते हैं? जज्बात. तो उन लोगों ने जो बातें करी, जितने लोगों ने कहा क्लोथ्स के बारे में, तुम्हें ये बात पता थी कि ये धार्मिक लोगों ने रूल्स बनाए थे कि कुछ औरतें अपने ब्रेस्ट नहीं कवर कर सकती? डिड यू नो दिस? यस और नो? No, sir. Yes, sir. No, sir. तो जब नहीं जानकारी होती है तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं. आप हिस्ट्री पढ़िए, पता करिए किन लोगों ने ये रूल्स बनाए थे कि कुछ औरतें अपने ब्रेस्ट नहीं कवर कर सकती. इट्स वेरी नेसेसरी टू नो द रियल पास्ट. अगर आप मेक बिलीव वर्ल्ड में जियोगे, जिसमें रियलिटी नहीं है, तो यू कैन थिंक एनीथिंग यू वांट. बट रियलिटी वाले वर्ल्ड में दिक्कत यह है कि सम पीपल ट्राई टू, अगर मेरे दादाजी से कुछ गलती हुई होगी तो मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में बात ना हो. नेचुरल है ना? नेचुरल है ना? Yes, sir. तो सम पीपल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स अप. कुछ लोग इनको छुपाने की कोशिश करते हैं, और आप समझ सकते हैं कौन लोग होंगे जो छुपाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे मतलब नहीं सच क्या है, जिनको मतलब है कि लोग उन्हें अच्छा समझे, उनके पास्ट को अच्छा समझे, दैट्स ऑल. और आप उनके चक्कर में आकर के बोलने लगे पास्ट वाज अ बेटर प्लेस. गिव मी वन रीजन व्हाई द पास्ट वाज अ morally correct place. I have another point of view. You guys said that people didn't fight for religion in the past. Which past are you talking about? Which past are you talking about that people did not kill each other for religion? Religion was the reason before the First and Second World War why people died. Only religious fights. Most fights were religious fights. लोग रिलीजन के लिए झगड़ा करते थे. मुझे आप बताएंगे तैमूर लंग क्यों आया था इंडिया? मोहम्मद गजनवी क्यों आया था इंडिया? सोमनाथ पे उसने क्यों चढ़ाई करी थी? उसकी क्या दुश्मनी थी सोमनाथ से? आपने पढ़ा है सोमनाथ के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में? इस्लाम धर्म का संस्थापक मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए. वो क्यों आया था मोहम्मद गजनवी? उसने सोमनाथ पे क्यों अटैक कर दिया? तो फिर से बात, अगर आपके दादाजी पे कोई इल्जाम लगेगा तो आप हमेशा कहोगे नहीं नहीं दादाजी मेरे अच्छे थे. तो जो दादाजी को डिफेंड करने में लगे रहेंगे वो कभी सच नहीं लाएंगे सामने. बट जिन्होंने कहा दादाजी थे तो क्या हुआ, गलत किए थे तो गलत किए थे, हम थोड़ी गलत हैं, दादाजी गलत किए थे. Those people will talk about the truth. तो आप में से कई लोगों को तो हिस्ट्री भी नहीं पता है दोस्तों. Okay, that's the problem. And that's why you guys were saying the past was a better place morally. Give me one aspect. किस मामले में past was a better place? Please. I rest my arguments. Anybody who believes that the past was a better place, please tell me. In what way? किस तरह से? किस मामले?
Okay, morality. So one man was married to wives, multiple wives. आज argument दोगे कि one man has multiple relationships. तो क्या हम मान सकते हैं What इतना? did you say, sir, about Somnath or Ghaznavi like that? Come again, Afreen. Sorry, Afreen, I'm saying. Come again. Sorry, Lalla. Tariq, Lalla, whatever. Yes, Lalla. What did you say about Somnath like that? Somnath was attacked. A big temple in the past was attacked by Muhammad Ghaznavi. किस लिए अटैक करा था उसने? Why did he attack the temple? Not According to once. history, लूटपाट के लिए. According लूटपाट, ये बात आपको पढ़ाया गया है. पढ़िए जाकर के. लूटपाट में पैसे का लालच होता है, हाँ या ना? हाँ. Yes. तो जाकर के पढ़िए जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं अपने ही लूटपाट के बारे में. मोहम्मद गजनबी ने जो लिखा है अपने ही एक्शन के बारे में कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसकी जो कहानी लिखी हुई है उसको पढ़िए जाकर के. उसको ऑफर किया गया कि एक काम करो, आपको हम लोग अपने गांव के सारे पैसे दे देते हैं, सोना चांदी दे देते हैं, मंदिर का सारा सामान दे देते हैं, आप इस मूर्ति को मत तोड़ो. पता है उसने क्या कहा? पता है उसने क्या कहा? कि मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने पैसे लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया अपनी अपनी ये के साथ. तो उसने नहीं माना और उसने तो मंदिर भी तोड़ी और पैसे भी लूटे. सर वो मूर्ति ले जाने का खास मकसद ये था कि वो सोना का मूर्ति था. लोगों ने कहा आपको जितना सोने का मूर्ति है उससे ज्यादा सोना दे रहे. उसने लिखा है, उसने अपने लिखा है कि मुझे उससे ज्यादा ऑफर किया गया था, लेकिन उसको मोटिवेशन किस बात का था? तो मत सर आपने कहिए. ये कि हाँ किस बुक बताइए. में पढ़ा है? हाँ बेटा, अच्छी बात है. तो हम आपको इसके इसके ये क्या कहते हैं, फैक्ट्स आपको दे देंगे कि हाँ उन्होंने क्या खुद से लिखा है. ठीक है बेटा, आपको बता देंगे. ठीक है लल्ला, हम आपको भेज देंगे इसकी जानकारी. तो सीधी सी बात है दोस्तों, क्या आपको जानकारी बताई जाएगी इस पर डिपेंड करता है. अगर आपको सही जानकारी नहीं दी गई है, यू कैन बिलीव एनीथिंग यू वांट, बट द ट्रूथ ऑफ द नहीं, मैटर ये इज. तो हम मान सकते हैं कि रूढ़िवादी तो हर पिछले जितने भी राजा वगैरह गुजर चुके हैं उसमें रूढ़िवादी का ज्यादा अंकित दिखता ही है. एग्जैक्टली बेटा, दैट्स व्हाई आई सेड द पास्ट वाज नॉट अ मोरली करेक्ट प्लेस. अच्छा बताइए, एक बात बताइए कि पास्ट में जब लोग बात करते हैं कि आजकल के लोग इतने ज्यादा दूसरे तीसरे लोग के साथ सेक्स करते हैं, ओके, दे टॉक अबाउट इट कि मोरल डिग्रेडेशन है, यानी मोरल हमारी नैतिकता का पतन है कि हम लोग ऐसा करते हैं. ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट निकलता है दोस्तों कि हम लोग बहुत ज्यादा दूसरे तीसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं. ठीक, लड़कियां आज 4 लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना रही हैं, लड़के आज 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, और ये मोरल डिग्रेडेशन है, वो बोलते हैं ऐसा. तो चलिए मैं इस बात को सुनता हूं और इसके बारे में एक बात बोलता हूं. मुझे एक बात बताइए, आप जब किसी से शादी करते हैं तो क्या चाहते हैं? कि उसके लाइफ में कोई और ना आए, यही चाहते हैं ना? ऑफ कोर्स दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. एवरीबॉडी वांट्स द सेम. द मैन ऑल्सो वांट्स द सेम थिंग ना, कि वाइफ के लाइफ में कोई और ना आ जाए. दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग. बट टेल मी, क्या ह्यूमन नेचर ऐसा है कि लोग एक के साथ रह लें और दूसरे की तरफ ना आकर्षित हो? ऐसा ह्यूमन नेचर है? हो ही जाता है. हो ही जाता है दूसरे की तरफ आकर्षण. ये मतलब ह्यूमन नेचर नहीं है. मोनागमी, मोनागमी मतलब होता है एक इंसान के साथ रहना, सिर्फ एक इंसान के साथ रहना. ठीक है, दूसरे की तरफ कोई इंटरेस्ट ना होना, इसको कहते हैं मोनागमी. नेचुरल मोनागमी होती है. एक पक्षी का नाम सुना है आप लोगों ने, सारस? हाँ Yes, सर. तो सारस पक्षी के साथ क्या होता है कि उसने उसकी शादी तो नहीं होती ना, उसने निकाह कबूल है करना है ना, अग्नि के 7 फेरे लेता है, वो सारस नहीं करता दोस्तों. दोनों में से कुछ भी नहीं करता. ना चर्च में जाके कहता है आई डू, ओके, कुछ भी नहीं होता. बट सारस के साथ क्या है कि जिसके साथ एक बार मेटिंग कर लेता है सारस अपने फीमेल पार्टनर के साथ, अगर वो फीमेल पार्टनर मर जाए तो वो फिर किसी के साथ पार्टनर मेटिंग नहीं करता. और अगर मेल पार्टनर मर जाए तो फीमेल भी किसी के साथ मीटिंग नहीं करती, जिंदगी भर नहीं. सर हिस्ट्री से एक चीज याद आया. आप पुष्पशृंग मित्र का नाम सुने हैं? किसका? पुष्पशृंग मित्र. नहीं, क्या बोल रहे हो? इसकी तो एक पता नहीं. फौज थी सर, जो धर्म बौद्ध से के सर. होते हैं उसको खास मतलब खंडित करने के लिए.
इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। मुझे आप जरा लिख के नाम बताओ किसके बारे में बोल रहे हो, बिकॉज आई कांट हियर, योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर, प्लीज राइट द नेम, ओके, एंड देन आई विल टेल यू। तो मैं आपको बताता हूं कि मोनोगमी क्या होती है। कि एक पक्षी जो है, अगर उसने शादी नहीं की है, ठीक है ना, कोई भगवान को साक्षी मान के नहीं 7 फेरे लिए अग्नि के, ना ही उसने कबूल है कहा अल्लाह के सामने साक्षी मान के, कुछ नहीं करा, लेकिन उसका पार्टनर मर जाए, वो कभी दोबारा किसी और के साथ मेटिंग नहीं करता, जबकि वो जानवर है, पक्षी है। इसको कहते हैं नेचुरल मोनोगमी, मतलब नेचर ने उसे ऐसे डिजाइन करा है। ठीक, और सुनिएगा, एक कीड़ा ऐसा होता है जिसमें मेल जो है ना मेटिंग करता है, तो फीमेल उसको खा जाती है मेटिंग करते समय। मतलब फीमेल जो ये कीड़ा होती है, जो इंसेक्ट होती है, वो अपने पार्टनर को खा जाती है मेटिंग करते वक्त, फिर भी वो मेटिंग करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसलिए जानकारी दी मैंने आपको, जानकारी इसलिए दी ताकि आपके दिमाग को लगे कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा, इसको सोचने के लिए। तो जरा सुनिएगा, हम इंसान मोनोगमस नहीं हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। नेचर हैज नॉट मेड अस मोनोगमस। अगर आपकी पति का डेथ हो जाता है तो आपको घर वाले कहते हैं दूसरी शादी कर लो, राइट। अगर पत्नी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं दूसरी शादी कर लो, बिकॉज हम नेचुरली मोनोगमस नहीं हैं। हम आसानी से कई लोगों के साथ रिलेशनशिप कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर ये रियलिटी है तो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि दोनों में से किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। यस और नो? दोनों में से किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। पास्ट में अगर एक औरत की शादी हुई एक मर्द के साथ, तो क्या उसके पास हक होता था कि अगर वो मर्द दूसरे औरत से शादी कर ले, तीसरे औरत से शादी कर ले, तो ये पहली वाइफ जो कि अब थोड़ी उम्र में बूढ़ी हो गई है, जो कि अब खूबसूरत भी नहीं लग रही है, उसके पास क्या बच जाता था अपना कहने के लिए? वो चाहे हस्बैंड चाहता तो अपनी सारी संपत्ति अपने नई वाइफ को दे सकता था, हाँ या ना? पास्ट में यस। मैं पूछता हूं, जो बताइए हाँ या ना के साथ। अगर पास्ट में किसी हस्बैंड को, किसी आदमी को एक नई औरत अच्छी लगने लगी, कोई अच्छी लगने लगी जवान औरत, उसने शादी कर ली, शादी करे ना करे उसको रख लिया, क्या वो अपनी सारी संपत्ति उसको दे सकता था, हाँ या ना? या कोई रोकने आता उसको कि क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई लॉ था उसको रोकने के लिए? कोई लॉ था उसको रोकने के लिए? नहीं। अच्छा, अगर उसने कहा कि हम तुमको तलाक दे दिए, ठीक है, बुढ़ापे में बोल दिया तलाक दे दिए, अब कोई हक था उसके पास, उस औरत के पास, कि बोले भाई तेरे पास इतनी संपत्ति, मेरे को तलाक देके साइड कर दिया तूने, वो कुछ बोल सकती थी? पहले नहीं नो होता, लेकिन नो अब तो सर। बहुत लॉज बन गए हैं। मैं 2-4 लोगों से नहीं, सारे लोग से हाँ ना सुनना चाहता हूँ, ताकि नो मुझे सर। कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट समझ में आए। क्या औरत बोल सकती थी कुछ अगर उसको तलाक दे दिया जाता तो? मान लो नो कि कहीं सर। कहीं देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि कबीलिए लोग जो होते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह कूच करते थे, उनमें से कुछ नियम ऐसा होता था कहीं कहीं कि डिवोर्स देने पे कुछ न कुछ दिया जाता था। कुछ ना कुछ, हाँ। कुछ ना कुछ, क्या वो उसके संपत्ति पर अधिकार जता सकती थी कि अब तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, तुम्हारी संपत्ति पे मेरा नहीं, इतना जो हक होगा? डिवोर्स टाइम जो था वही फाइनल था, मतलब कुछ न कुछ मतलब गुजर बसर के लिए, ज्यादा क्या नहीं। क्या वो औरतों के लिए सही स्थिति थी? या आज जब आप अपने पत्नी को डिवोर्स देते हैं तो पत्नी आप पे क्लेम कर सकती है कोर्ट में जा करके, और आपका संपत्ति का एक अच्छा खासा हिस्सा उस औरत के पास जाएगा। तो औरतों के लिए कौन सी स्थिति बेहतर है, आज वाली या पहले वाली? नाउ डेज। टुडेज। टुडे को और ये उनका हक दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपका हक है, राइट। अच्छा, एक बात मुझे पूछना है, दो लोग जब शादी करते हैं एक दूसरे से, उस समय एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होती है, अगर उन दोनों को आकर्षण होता है, तो क्या उस मोमेंट पे वो सोचते हैं कि उनके उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, एक दिन उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा वो सोचेंगे क्या जब प्यार मोहब्बत में होंगे? तो मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। नहीं सर।
जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत बेतरतीब तरीके से प्यार करते, लगता है एकदम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तो क्या उस समय शादी करते समय वो ये सब सोचेंगे कि मुझे शादी के बाद क्या मिलेगा, मरने शादी टूट गई तो क्या होगा, ये सब दिमाग में ख्याल आता है किसी के? बिल्कुल नहीं आता। अब अगर लेकिन आप जानते हैं ना कि दोनों में से किसी का भी दिमाग भटक सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, फिर कोई और हो सकता है, क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं, ऐसा हो सकता है ना हमारे साथ। Yes, yes, sir. तो उस स्थिति में चूंकि औरत ने कुछ डिसाइड नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, उसको प्यार था उस आदमी से, उसने शादी कर ली, अब 4 साल बाद उस आदमी की सोच बदल गई है। अगर वो, और अब ज्यादातर केसेस में किसकी सोच बदलते देखते हैं? छोड़ने वाला, मर्दों की कि औरतों की? औरतों की। छोड़ता कौन है? मर्द छोड़ते हैं, औरतें छोड़ती हैं ज्यादा? Men. मैं ज्यादातर लोगों से सुनना चाहता हूँ, एक दो से नहीं। मैन ज्यादातर कौन छोड़ते हैं? मैन मैन झूठ मत बोल चिक्कू, झूठ मत बोल, तुझे खुदा का वास्ता जिस पे तू यकीन नहीं करता। ओके, तो दोस्तों दोस्तों दोस्तों, ज्यादातर मर्द मर्द छोड़ते हैं, सब लोग सच सच बोलेंगे, ज्यादातर मर्द छोड़ते हैं औरतों को। और उसकी Yes, वजह है कि yes, मर्द जो है ना, जवान लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं, हाँ या ना? yes, yes, sir. देख भाई, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा चिक्कू, टेंशन मत ले, मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रहा, ओके? टेंशन मत ले भाई, एकदम रिलैक्स रहे, ठीक है? ये बात चिक्कू के बारे पे लागू, चिक्कू पे लागू नहीं होती दोस्तों, ओके? बाकी मेरे पर लागू होती है, सब पे लागू होती है, ठीक है? तो तो ऐसे में जब हमने प्यार किया और शादी कर ली बिना सोचे समझे, जाहिर सी बात है नहीं सोचेंगे तो लोग प्यार करेंगे तो क्या करेंगे, चले पहले फरिया लो भाई, कितना पैसा दोगे टूटेगा तो, ऐसा किसी के मन में चलता है? और अगर चलेगा तो उसको प्यार कहेंगे क्या? सच में प्यार कहेंगे उसको? नो सर, नहीं सर। No. तो प्यार में जब आपने आकर शादी कर ली और जब शादी खत्म हो रही है किसी भी वजह से, किसी वजह से खत्म हो रही हो, उस समय उस औरत के पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए कि वो बेकार हो जाए एकदम अपने तरफ से? पहले बताइए। ऑप्शंस होना चाहिए। ये ऑप्शंस पास्ट में ज्यादा जरूरी थे कि आज ज्यादा जरूरी है? पहले ये बताइए मुझे। दोनों टाइम जरूरी था। नहीं नहीं नहीं, कल्पना कल्पना, मैंने जब कंपेयर करने के लिए कहा है तो कुछ सोच के कहा है, मेरी बातों को गहरे से सोचना, क्योंकि मैं एक फिलोसोफर हूं, मैं यहाँ पर फिलोसफी से बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। क्या ये ऑप्शन की औरतों को कुछ मिले आज ज्यादा जरूरी है, पास्ट में इसकी ज्यादा जरूरत थी? मैंने पूछा, सोच समझ के बताना। पास्ट में भी पास्ट में जरूरत सर। थी सर, आज में भी जरूरत, आज भी जरूरत है, लेकिन आज नए नए कानून बन गए हैं तो उनको मिल जाते हैं। पहले नहीं मैम, थोड़ा आप मुश्किल पॉइंट होता नहीं बट समझ रही हैं। पास्ट में जो जरूरत नहीं, पास्ट जरूरत में तो ज्यादा पास्ट में जरूरत यूनियन इसलिए थी, पास्ट में ज्यादा जरूरत इसलिए थी क्योंकि आज तो औरतें घर से बाहर निकल के काम कर रही है ना, काम वो कर पैसे सकते हैं। कमा सकती हैं। पास्ट में उनके पास ऑप्शन क्या बचता था जब उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते? तो बहुत सारा सुसाइड कर घर लेती के थी। काम करना, दूसरों क्या नौकरानी बनना, राइट? यस सर, तो यस। इसकी जरूरत पास्ट में ज्यादा थी कि अभी ज्यादा? ये मैंने पूछा कि औरतों को कुछ पास्ट मिलना चाहिए। पास्ट ज्यादा में पास्ट में तो दोस्तों आप बताइए कि किस लिहाज से आप लोगों ने कहा कि पास्ट वॉज अ मोर मॉरली करेक्ट प्लेस, पास्ट वॉज ए वेरी अनफेयर टाइम, जहां जिन लोग के पास पावर है, जो लोग ताकत रखते हैं, क्या आज कोई घोड़े पे दौड़ता हुआ 1000 लोगों के साथ आ करके आपके शहर को बर्बाद करके जा सकता है? जो तैमूर लंग ने किया दिल्ली के साथ, आपको पता है वो जो टीले टीले बनाए थे उसने, एक दिन में इतनी बड़ी मीनार खड़ा कर दी थी, सिर काट के, ठीक है, तैमूर लंग ने, ठीक है? तो क्या आज आपके आपके साथ ऐसा हो सकता है एक शहर में कि कोई घोड़े पर दौड़ता है? हाँ, आज एटम बम गिराया जा सकता, मैं मानता हूं, बात समझ में आ रही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि डेथ का ज्यादा भयावह तरीका क्या है? गोली से मरना या तलवार से मरना? डेथ में दर्द कब ज्यादा होगी? राइट, तलवार से ज्यादा। तलवार का चोट ज्यादा है ना। अगर आपको किसी ने गोली मारी तो आप कितनी देर ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं कि जिंदा रहेंगे, और कितनी देर तड़पेंगे? और तलवार से काटा है आपको तो कितनी देर आप तड़प सकते हैं? तलवार आपके पेट में घोप पहले भी था, अभी भी हो रहा है, ऐसा बात थोड़ी ना। डिपेंड्स ऑन सर, गोली कहाँ पे लगा, तलवार कहाँ पे लगा। कल्पना बदमाशी कर रही है मेरे साथ, ओके? तो थोड़ी देर के लिए आप समझे बात को, ठीक है? तो दोस्तों मैं ये तो एक साइड वाली बात बोल गया बहुत कुछ बोलने के दौरान, इससे ये बात नहीं हो जाती कि यही बात मेरी मेन बात थी। मेरी मेन बात जो थी, जितनी बातें मैंने बताई, कैन यू कंपेयर एंड टेल मी विच टाइम्स
are better or were better, the today or the past? Morally better. आप अपने आप से डिसाइड करें। अच्छा, ये फैसला मैंने आप पे छोड़ा, अगर आप सोचने वाले इंसान हैं तो। ओके, मेरा इरादा है कि मैं लोगों को बताऊं पास्ट वॉज नॉट बेटर। अगर कोई चीज बेहतर होता है, आप मुझे बताएं बेहतर से बदतर की तरफ हम कब जाते हैं? बेहतर से बदतर की तरफ हम कब जाते हैं? जब हमें फोर्स किया जाता है या खुशी खुशी जाते हैं बेहतर से बदतर की तरफ? फोर्स किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब देखते हैं वो जंगलों में कबीलाओं को रहते हुए, ठीक है ना, तो क्या ये मानना मुश्किल है आपके लिए कि कभी हम लोग भी वैसे ही रहते होंगे कबीलाओं के जैसे ही, जैसे आज रह रहे हैं जंगल में कुछ लोग हैं जो आदिवासी रहते कहलाते होंगे हैं सर। और ज्यादा एकदम एकदम मतलब कट ऑफ है दुनिया से, क्या एक समय हम लोग भी वैसे ही रहते होंगे? बिल्कुल रहते होंगे सर। तो वो कभी हमारे तरह नहीं रह रहे थे ना वो जंगल वाले, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते वैसे वापस। आप जाना चाहेंगे वो जंगल वाले लाइफ में वापस? नहीं। हो सकता तो यानी कि वो कभी वापस यहाँ नहीं, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए जहां हम लोग पहुंचे हैं। तो अगर वो पास्ट था तो आप उसको बेहतर मानते हैं? कौन सा पीरियड बेहतर मानते हैं पास्ट का? पास्ट का कोई खास पीरियड है जो बेहतर था? प्लीज बताइए। पास्ट में जब हम लेते हैं तो हम पूरी पास्ट ले लेते हैं, बताइए मुझे कौन सा। खाली एजुकेशन के मामले में मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ एक जगह पे कि एजुकेशन के मामले में पास्ट में कोई ऐसा नहीं था कि 1500 साल पहले 2000 साल पहले औरतों को एजुकेशन नहीं मिलता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? वो भी एजुकेटेड होती थी। इंडिया में औरतों के लिए वैसी सिचुएशन नहीं रही। हाँ, एक दो चीजें हैं जो मैं बताता हूं जो काफी समय तक चला है, ठीक है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीमेन चला है, काफी लंबा चला है। लेकिन अगर आप, फिर से पूछता हूं आपसे, जितनी बातें अभी तक मैंने बताई उसमें से कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आप डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे और कह सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं था पॉइंट आपका, आपने ये जो बात बोली है फैक्चुअली गलत बोली है, कोई ऐसी बात? और मैं आपको लल्ला, वो जो मैंने एग्जांपल दिया जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा कि सर आपने ये कहाँ पढ़ा है, वो तो मैं आपको बता दूंगा बेटा। लेकिन उसके अलावे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि लोग धर्म के लिए ही लड़ते थे, ज्यादातर लड़ाइयां धर्म के लिए होती थी, ठीक है? और एक चीज के लिए लड़ाई होती थी, वो था सत्ता का विस्तार, इंपेरियलिज्म, मतलब अपना साम्राज्य बड़ा करना है, राइट? साम्राज्य बड़ा करना है, इसके लिए भी लड़ाई होती थी। आज साम्राज्य बड़ा करने की लड़ाई बहुत कम हो रही है, एक जगह दो जगह हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं हो रही। सब कंट्रीज अपने बॉर्डर से खुश है कि ये मेरा बॉर्डर है, चलेगा, हम खुश हैं, राइट? दे आर लिविंग हैप्पीली। तो मुझे बताइए, साम्राज्य के लिए अपने देश के लोगों को लड़वाते रहना कि राजा का जगह बड़ा हो जाएगा, ये अच्छी चीज थी, ये मॉरली करेक्ट चीज है। अगर आज नरेंद्र मोदी कहें कि चलिए श्रीलंका पे हमला करिए, इंडियन एयरफोर्स को कहे कि चलो भैया श्रीलंका को अपना लो, ठीक है? वो कहेंगे चलो भैया नेपाल पे हमला करो, नेपाल को अपना लो, चलो भैया बांग्लादेश पे हमला करो, हमला अपना लो। तो ये आप इसको मॉरली करेक्ट टाइम बोलेंगे अगर ऐसा होने लगे और सब लोग इसके साथ नॉर्मल रहने लगे, तो इसको नॉर्मल समझा जाए तो ये मॉरली सही होगा क्या? तो क्या ये पास्ट में होता था कि लोग नहीं। एक दूसरे जगह पे हमला कर देते थे बेवजह, भैया अपना यस कर यस दो? सर। यस तो सर, क्या, करते तो हैं। क्या पास्ट आगे बेहतर टाइम था? पास्ट बेहतर टाइम था दोस्तों। मतलब एक नियम टाइप का हो गया। क्या लल्ला? राज्य विस्तार के लिए करते थे उस टाइम का, मतलब एक नियम टाइप का हो गया कि जिसका ज्यादा विस्तार रहेगा वो सम्राट कहलाएगा, जैसे कि बिहार के बहुत सारे राजा वगैरह हो गए, सम्राट हो गए। हाँ, तो मैं ये पूछता हूँ क्या वो बेहतर टाइम था जहां पर लोग एक दूसरे को अटैक कर करके अपना साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे? ये बेहतर टाइम हो सकता है? नहीं सर, वो विस्तार के लिए मतलब अपना एक बोल लीजिए कि खुशी तो अपना एक आदमी को ना होगी जो सम्राट होगा, जो बादशाह होगा, राइट? बाकी सब देखिए सर। सिर्फ सम्राट और बादशाह को खुशी होगी कि मैं बड़ा सम्राट हूं, मैं बड़ा बादशाह हूं, लेकिन लोग तो मरते हैं, कॉमन लोग मरते होंगे लड़ाई में। और जहां एक एक राज्य पे जब हमला होता था तो ऐसा सोल्जर्स हुआ वहां के है लोगों के साथ बदसलूकी करते थे कि नहीं करते थे, कि छोड़ देते होंगे कि भाई जीत गए, बात खत्म करो? करते थे सर। हिस्ट्री में तो तो ऐसा ऐसा हुआ है सर कि 50-50 हजार आदमी एक एक जंग में मारे गए। जैसे कि इनका हो गया, क्या कहते हैं, मैं फॉरगॉट इट नेम, क्या नाम था उनका, अशोक, कलिंग हाँ, युद्ध। जी हाँ बिल्कुल, 50,000 आदमी एक बार में मरा है वहां पे। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, मैंने अभी उसके बारे में जिक्र करा था। तो मुझे बताइए कि क्या वो टाइम बेहतर था? जब आप आज के तुलना में वो बेहतर टाइम था क्या? नहीं सर, बेहतर कैसे होगा तो अभी। तो फिर क्यों आप लोग मानते हैं पास्ट वॉज बेटर देन टुडे? मॉरली प्लीज।
नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा सर। बहुत लोग यहाँ पर बोल रहे हैं पास्ट वॉज बेटर देन नाउ, मोरली, नैतिक रूप से पास्ट बेहतर समय था, कई लोगों ने कहा। खासकर लज्जा की बात करी, औरतों की बात करी, मैंने कहा नहीं, आज औरतें अपने मन से जो चाहे करें, वो चाहे तो कपड़े ढके, चाहे तो कपड़े ना पहने, मतलब जहां तक हो सकता है बीच पे जाती हैं लड़कियां। आप मुझे बताइए, अगर आपको पानी में अटखेलियां करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मान लो आपको पानी में खेलना बहुत पसंद है, ठीक, बहुत मजा आता है, आप बचपन में करते होंगे घर में, जब बहुत छोटे थे तो कपड़े खोल के जमीन पे ससरते होंगे ऐसे, 3 साल बारिश 4 साल की उम्र में करते थे दोस्तों। कुछ लोगों को ये सब इंटरेस्ट बना रहता है बड़े होने पर भी। मैं पूछता हूं कि मर्द तो अपने अंडरवेयर पहन करके समंदर में कूद जाए और घूमे फिरे, औरतों को करने का मन करे तो उनको कहा जाए कि नहीं आप अपना सलवार समीज पहन कर जाइए। ये कैसा समझदारी है भाई? वो कैसे मजा करेंगे सलवार समीज पहन के, चिपक जाए कपड़ा तो वो क्यों ना बिकिनी पहन के, अगर उनका मन है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कहो ऐसा करने के लिए, अगर उनका मन है तो वो क्यों ना करें? उनको हक क्यों नहीं हो उनको खेलने का पानी में, उनको मस्ती करने का पानी में? किस वजह से नहीं करें वो? क्योंकि मर्दों का मूड बन जाता है, सॉरी टू से बट दिस इज व्हाई दे शुड नॉट डू इट। उनको अपने खुशी पे सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि मर्दों का पारा ऊपर चला जाता है औरतों को देख के, इस वजह से वो ना करे। हाँ दोस्त, सही है ना? ये मोरली सही बोल होगा? रहे हैं सर, आज तो ये आज मोरली, खोल के बोले, ये बिकिनी मोरली, अंडरवेयर सब बता रहे हैं। सॉरी महफूज, नहीं सर, आप तो नहीं बोल रहे, सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि क्या इस वजह से उनको रोक दें? तो कुछ लोग बिकिनी 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 बहुत करते हैं यार, कि बिकिनी बहुत खराब चीज है, ठीक है? तो मैं पूछता हूं कि क्या कोई स्कूल में बिकिनी पहन के आने की बात करे, या बिकिनी जहां स्विमिंग करनी है तो बिकिनी में नहीं तो सलवार समीज में करे, साड़ी पहन के बिकिनी स्विमिंग करे कोई औरत? ये पूछ रहा हूं, उसकी मर्जी ना। कुछ औरतों को अपना शरीर दिखाने में संकोच होता है, राइट? तो कोई उनको फोर्स कर रहा है कि वो दिखाएं, लेकिन किसी को अच्छा लगता है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मुझे एक बात बताइए, वो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं दोस्तों, जो मेहनत करते हैं जिम में जाकर, खूब मसल्स बनाते हैं, वो स्टेज पर चढ़ के अपने मसल्स ऐसे दिखाते हैं खूब खुश हो के? वो एक्चुअली क्या प्रदर्शित कर रहे होते हैं? वो एक्चुअली क्या प्रदर्शित कर रहे होते हैं? वो एक्चुअली दिखा रहे होते हैं हार्ड उन्होंने वर्क, कितनी मेहनत की है, ना कितना मेहनत हासिल की। करा है, राइट? तो अगर कोई लड़की जिम में जाकर के खूबसूरत शरीर बनाए, तो क्या उसको उस शरीर को छुपाने की मजबूरी होनी चाहिए, या उसको भी वैसे ही फ्रीडम के साथ कि देखो मैंने कितना अच्छा शरीर बनाया है? अब औरतों के शरीर की सुंदरता अलग होती है, मर्दों के शरीर की सुंदरता अलग होती है, क्या वो दिखाए नहीं अगर उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है? तो ये पूछना है मुझे, क्या ये हक नहीं है उनको? इसको आप निर्लज्जता कहते हैं, शेमलेसनेस कहते हैं? क्या यह आपके सोचने के नजरिए में खराबी नहीं बताती ये बात? मैंने कब कहा कि सारी लड़कियां ऐसे करने शुरू कर दे, लेकिन जिनको शौक है कि वो जिम जाएं, अपनी खूबसूरत बॉडी बनाएं, और उसके बाद उस बॉडी को दिखाएं लोगों के सामने कि मैंने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, इसमें प्रॉब्लम किसको होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आजकल मैं सुनता हूं लोगों के तरफ से कि लड़कियां चुस्त कपड़े पहनती हैं, शरीर के उनके कर्व्स दिख जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं वो बेशर्म हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर कर्व्स दिख जाने से वो बेशर्म हो गई, तो उनको बनाने वाला कौन है वैसे कर्व्स दे करके? क्यों बनाया कर्व्स दे करके? क्या सीधा नहीं बनाया जा सकता था उसको, जिसमें कर्व्स ना होते? बहुत मुश्किल था ये काम करना। तो अपनी रियलिटी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए शर्मिंदा महसूस करना इज ओनली स्क्रूड अप थिंकिंग। आपके सोच को खराब किया गया है, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो। थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आप हमेशा सारी चीजें अपने हिसाब से चाहते हैं। ये सोसाइटी हमेशा मेल शॉविनिस्टिक रही है, मेल डोमिनेंट रही है, और अब जाकर धीरे धीरे कुछ औरतें अपने आप को असर्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि चलो तुम हो ठीक है, लेकिन हम भी हैं। अब इसी को निर्लज्जता कह रहे हैं कुछ लोग। मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो औरत जो सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, सही कर रही है, कभी नहीं कहूंगा। लेकिन इसलिए वो गलत नहीं है क्योंकि औरत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि ये करना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ठीक है? और एक और एंगल लेके जाऊंगा कि सर आप मर्दों ये भी की, तो कह सकते हो ना सर कि मेन भी जो जो पुरुष भी वैसा कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। हाँ 100%, 100%।
किसी लड़की एक और पे लड़का पाबंदी दोनों नहीं। गलत और कर रहे हाँ, हैं। और एक बात और, अगर आप माँ बनने वाली हैं, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा गलत है, क्योंकि पुरुषों का स्मोकिंग करना उनके बच्चों के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जो बच्चे वो पैदा करेंगे, जितना कि माएँ जो स्मोकिंग कर रही है उनके बच्चों के लिए है, क्योंकि नेचर ने उनके शरीर में बच्चे को रखना है कुछ दिन, 9 महीने, तो देयर स्मोकिंग विल मैटर मोर फॉर द चाइल्ड। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके बाद आप बात करें। बायस्ड होके ना बोलिए कोई चीज, जो सही है उसको बोलने के लिए आइए सामने। पहले अगर आपने माइंड मेकअप कर रखा है कि आपने यही बोलना है, सही गलत से आपको मतलब नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कशंस। Okay, discussions are done so that people can become educated, they can learn about reality, about facts, and they can update themselves, अपनी अपनी अपडेट कर सके अपनी सोच को। If that is the purpose, discussions are an amazing thing। क्योंकि यकीन मानिए, मैं आपसे पूछूं कि पहली बार अमेरिका को किसने खोजा, तो आप सब कहोगे किसने खोजा, किसने खोजा? वास्को डी गामा ने ना। वास्को डी गामा। वो तो इंडिया को खोजने का उसको क्रेडिट दिया जाता है। कोलंबस। कोलंबस का नाम आएगा, राइट। कोलंबस। तो कई बार कोलंबस। क्या होता है दोस्तों कि बैड इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसको करेक्ट करना मुश्किल होता है। कोलंबस पहली बार नहीं गए थे अमेरिका, अमेरिका उनसे पहले 500 साल पहले कोई और जा चुका था। कोलंबस से 500 साल पहले कोई और जा चुका था, लेकिन दुनिया में आप 900 लोग से पूछेंगे तो 90 लोग बोलेंगे कोलंबस कोलंबस कोलंबस, ठीक है। हाँ तो सर, कई बार कल ये इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं अचानक अभी भूल गया हूँ। हाँ, हम भी पढ़े थे, याद आ रहा है, लेकिन ये कौन था मैं नाम बताता हूँ। लेif एरिक्सन एक नोर्समैन था जो पहले गया था 500 साल पहले, किससे? कोलंबस से। तो कभी कभी बैड इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा चली जाती है दूर तक कि उसको करेक्ट करने में बहुत समय लगता है। जैसे अभी मैं इस बात को इंग्लिश से कनेक्ट करता हूँ। आप लोग इंग्लिश वीडियोस और रील्स देखते हो ना, ये पे क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टा। और यूट्यूब पे, राइट। हम्म। तो आपको कई वीडियोस आती हैं और वो लोग इंग्लिश सिखाते रहते हैं, वो लोग वहां पर फ्री में। और जरा सा मैं आपको आज थोड़ा इंग्लिश हम भी आपको वहां से सिखाएं, एक सेकेंड। तो गलत इंफॉर्मेशन जब ज्यादा फैल जाती है दोस्तों, तो उसको सही करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दे रहा हूं, जरा सा मौका दीजिए मुझे, गिव मी अ सेकेंड। रामाई, ओके ओके, ये आप लोगों से अगर मैं पूछूं, अगर आप लोग ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप लोगों ने एक वीडियो वायरल बहुत देखा है, खाना बासी है, द फूड इज स्टेल, ठीक है। और आपने देखा होगा खाना जूठा है, द फूड इज ऑर्ट, खूब वायरल हो रहा है, कई लोग बना रहे हैं वीडियो, बना रहे हैं ना दोस्तों, बना रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन इतनी फैल जाती है कि उसको करेक्ट करने वाले पे उंगली उठाने लगते हैं लोग, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, एक लड़की ने कहा खाना बासी है, द फूड इज नॉट फ्रेश, नाइस, उसको नाइस कहा, और साथ में कह रही है क्या कि लेकिन इससे बेहतर कुछ और है, जरा सुन लो क्या है। आपको पता है, आप नोट फ्रेश की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज स्टेल। तो खाना बासी आप क्या बोलोगे? द फूड इज स्टेल। अच्छा, सिखा दिया। और आगे सुने, और क्या क्या ब्रेड बासी है, द ब्रेड इज स्टेल। वेरी नाइस। खाना जूठा है, इसे आप कैसे बोलोगे? फूड इज ऑट। अब देखिए, ये आपको लगता है कि अकेली महिला जो ये चीज सिखा रही है? नहीं, बहुत सारे वीडियो में आता है। राइट। तो जब 10 लोग एक बात बोलने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं उस बात पे? बढ़ जाता है ना दोस्तों। तो आपको मैं समझाता हूं। पहली बात, स्टेल पे आते हैं। जब फूड स्टेल हो जाता है तो खाने लायक नहीं रह जाता है दोस्तों, ठीक है। जब फूड स्टेल हो जाता है तो खाने लायक नहीं रहता, उसमें महक आ जाती है, उसमें फंगस आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेल। बात समझ में आई? जो फूड खाने लायक ना रह जाए उसको कहते हैं स्टेल फूड, ओके।
अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूं मैं बासी रोटी खा रहा हूं, तो क्या मैं महकने वाली रोटी खा रहा हूं या कल रात वाली रोटी खा रहा हूं? कल रात वाली रोटी। अगर मैं कहूं मैं बासी भात खा रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि महकता हुआ सड़ा हुआ भात खा रहा हूं या कल रात वाला भात खा रहा हूं? कल रात वाली। तो मुझे बताइए, द राइस दैट आई एम ईटिंग इज बासी बट नॉट स्टेल। आप समझ रहे हो ना? इस बासी, कल रात का है, बासी तो है लेकिन सड़ा हुआ नहीं है। तो जब फूड स्टेल होता है मेरे दोस्तों, तो वो नॉट फिट फॉर कंजम्पशन हो जाता है, नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, खाने के लायक नहीं। खाने के लायक नहीं रहा। अब बताइए, मैं ये बात अकेले बोल रहा हूं और हाँ 50 लोग हैं, इनकी जो फॉलोइंग है ना 377,000, इनके सब्सक्राइबर्स इतना कितने तो सीजीपीए नहीं रखना चाहिए। 3,77,000, और ऐसे ऐसे 1-1 करोड़ वाले सब्सक्राइबर वाले लोग ये चीजें फैलाए जा रहे हैं। तो मुझे बताइए कितने लोग सच जानेंगे इस जगह पे? सब तो समझेंगे कि सही है, द फूड इज स्टेल। मतलब ये कब उनका भेद खुलेगा? जब वो किसी अंग्रेज से बात करेंगे और कहेंगे आई एम ईटिंग स्टेल रोटीज और आई एम ईटिंग स्टेल राइस, हम बासी भात खा रहे हैं, तो अंग्रेज ऐसा मुंह कर लेगा, क्या यू आर ईटिंग स्टेल राइस, व्हाई डोंट यू हैव गुड फूड? बात समझ आ रही है दोस्तों? तब उनको समझ में आएगा कि वो गलत जाने। अभी पता चल पाएगा उनको कि वो गलत जान रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो तो वही चीज कर ही रहे हैं, तो सब एक दूसरे से हाँ हाँ स्टेल मतलब बासी। और सुनिए, ऑट, जब उसने कहा द फूड इज ऑट, तो मैं आपसे चाहता हूं कि ऑट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप बोलिए द फूड इज, और उसके बाद एक वर्ड कुछ भी बोलिए जो आपके मन में आता हो। ये नहीं कि बासी और खराब, कुछ भी, कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलिए। द फूड इज Fresh. फूड इज फ्रेश। अगला Delicious. The food is fresh. कोई भी वर्ड बोलिए। द फूड इज Delicious. डिलीशियस, द फूड इज डिलीशियस। अगला बोलिए, Delicious. Food is spicy. द फूड इज स्पाइसी। आगे बोलिएगा, द फूड इज, कम ऑन कीप कमिंग, The कीप गोइंग। food is bland, sir. Food is द फूड इज ब्लैंड। ओके, बहुत अच्छा रेनू। और बताइए दोस्तों, द फूड इज हॉट, द फूड इज हॉट। ओके, अच्छा चलिए, ये सारे वर्ड्स को गौर करिए, सारे एडजेक्टिव्स थे, हॉट, ब्लैंड, टेस्टी, डिलीशियस, ये सब क्या है? These are एडजेक्टिव है, राइट? और जिस तरह से वो बता रही है फूड कैसा है, तो झूठा है, द फूड इज ऑट, बताया ना उसने। अब मैं आपको लेके चलता हूं डिक्शनरी में दोस्तों, और वहां आप जाके देख लो खुद से कि ऑट की मीनिंग क्या होती है और ये क्यों बता रहे हैं ये। ओके, क्यों ये बता रहे हैं ऑट की मीनिंग, ये क्या जरूरत है इनको ऑट का बताना ऐसा? आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरा डिक्शनरी खोलने में, पता नहीं अब अचानक से क्यों ऐसा। आप मुझे बताइए, उसने कहा खाना जूठा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि मत खाओ, खाना जूठा है, यही बताया ना, खाना जूठा है, द फूड इज ओट। आइए मैं आपको लेके आता हूं डिक्शनरी पे, और कोशिश करिएगा कि बताइए लोगों को ये बातें कि देखो इतना आसान नहीं है, इस तरह से इंग्लिश कभी नहीं सीखा जा सकता। पहली बात, ये वर्ड जो है अब एकदम आर्केइक हो चुकी है, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई यूज नहीं करता। क्या लिखा है? अ मॉर्सेल लेफ्ट एट अ मील, ठीक है। स्क्रैप, जो खाना जो होता है थोड़ा बहुत जो आखिर में छूट जाता है, जिसको आप जूठन कहते हैं, जूठन समझते हैं, जूठन, छूट जाता है जो खाना, जिसको आप लेफ्ट ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? Left over. ओके, आगे देखें यहां पर क्या लिखा है, यहां पर, यहाँ इटिमोलॉजी मिडिल इंग्लिश लिखा है। क्या लिखा है? मिडिल इंग्लिश मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर मिडिल इंग्लिश है। आज हम लोग मिडिल इंग्लिश बोलते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो तो। मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। और ये लोग इस वर्ड को राउंड करवा दिए, पूरे इंडिया में 10-15 करोड़ लोगों को पहुंचा दिए वर्ड ऑट, और सब लोग इतना आसानी से सीख लेंगे द फूड इज ऑट, अरे द फूड इज ऑट, अरे दैट राइस इज ऑट। लेकिन उनको एहसास भी है कि वो गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। पहली बात, वो नाउन है, ऑट क्या है बेटा? नाउन। ऑट एडजेक्टिव भी नहीं है, तो कैसे बोल सकते द फूड इज ऑट? ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ, उसकी मीनिंग वो निकल के आई, फिर भी वो बोले जा रहे हैं। और तो और वो सिखाते हैं पानी जूठा है, द वाटर इज सिप्ड,
सिखाते हैं ना, द वाटर इज सिप्ड, अगर आप लोगों ने वीडियो देखे हो तो यस सर, ये सब वाटर याद इज रखिएगा। झूठा के लिए जितना वर्ड वो बता रहे हैं वो आपका दिमाग खराब करे, टाइम बर्बाद करे दोस्तों। व्हाट इज झूठा द मीनिंग ऑफ झूठा सर? मैं बता रहा हूँ आ रहा हूँ। झूठा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि जैसे आप कुछ खाई है रेनू प्लेट से, अगर मैं उससे कुछ खा रहा हूं तो मुझे बुरा लगना चाहिए कि आपका झूठा है, आप बोल सकते हैं मेरा झूठा है मत खाओ, ऐसा कुछ भी। या मैंने अपना खाना खाने के बाद आपको उसी में से कुछ ऑफर कर दिया तो आप कहेंगे सर ने मुझे अपना झूठा ऑफर कर दिया, राइट? तो झूठा एक कॉन्सेप्ट है, और मैं बताता हूं ये झूठा कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जिस्ट करता है हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ हायरार्की। आप मुझे बताइए कि अगर एक ब्राह्मण कोई खाना खा करके छोड़े तो उसको झूठा माना जाता है या प्रसाद माना जाता होगा? पास्ट में, पास्ट की बात करिए। प्रसाद। प्रसाद। लेकिन जब कोई नीची जाति का आदमी खा लेता होगा तो कहा जाता होगा इसका झूठा है, दूर रखो इससे, राइट? लेकिन इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हो सकता है मैंने जो बात बोली ब्राह्मण वाली वो बात पूरी तरह से सही ना हो फैक्चुअली, मुझे बाद में ग्रिल मत करना उस बारे में, लेकिन इंग्लिश में झूठा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कल, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, झूठा का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इंग्लिश में। तो आप कोई भी चीज झूठा है नहीं बता सकते। अब बोले कैसे बोलेंगे, तो ये बात मैं बताता हूं। ए और बी बैठा है टेबल पे, ठीक है? ए ने एक ग्लास से पानी पिया, ओके? बी ने उस ग्लास को हाथ लगा दिया, ठीक है? तो ए कह रहा है रुक जा, डोंट ड्रिंक फ्रॉम दिस ग्लास, इट्स माइन, इट्स माइन, इट्स माइन, इट्स माई ग्लास। उसने कहा इट्स माई ग्लास, इट्स माई ग्लास, बस हो गया। इट्स माई ग्लास बोलना ही काफी है। लेकिन सामने वाला अगर कह दिया सो व्हाट, मान लो सामने वाले ने कह दिया तो क्या, तुम्हारा है तो क्या, पिएंगे? तो तुम बोलो नो 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 नो, आई एम प्रीटी पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन, ओके, आई डोंट शेयर माई ग्लास। बस ये सब बोल सकते हैं आप ये नहीं बोल सकते कि दिस ग्लास इज झूठा, जो इंडियन हिंदी में बोलते हैं उसको शब्द दर शब्द आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है इंग्लिश में। और इस बारे में मैं और बात करूंगा जब आपसे कल मिलूंगा 7 बजे, ठीक है दोस्तों? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। वाह सर। बाय। बाय सर।